Okay, let's start. So we will start today soils on India. Wait. Okay, just switch on your video, Rohit. Please switch on your video and Vishwajit as well. Okay, let's start now. We will study a very important topic today, that is soils in India. Okay, the types of soils found in India. This is also very simple. If you hear it properly, you will just learn it in the class itself. Fine. So let's start. Okay. You guys can hear me, right? Just give me a thumbs up. You can hear me, right? Okay, fine. See this digital way of learning, it will take some time, then we will be fine. Okay, fine. So soils in India. So soils usually take your 100 to 1000 years to form. Fine. Now soils are made up of what? What makes soil? What are the reasons for it? So coming to the next slides, the factors involved in the making of the soil. Do not start writing it, just listen to me. Parent rocks, okay, climate, vegetation, animals, and microorganisms. Fine. So now see, parent rock means, wait. So I said that the factors that influence in the formation of the soil are parent rocks, climate, vegetation. Okay. And two more are there, plants and microorganism. Let's start with the parent rock. Now parent rock means, yeah, there are many types of rock. Again, we will be learning this in one another class. There are different type of rock. Okay. For now, just remember that there are igneous rock, okay, metamorphic rock and sedimentary rocks. Okay. Now, igneous rock means the rocks that comes out from the volcanic eruption. The lava comes out when the volcanic eruption happens. Fine. And then this lava, it cools down and becomes very hard, and then it becomes a rock. Fine. So those kind of rocks are known as igneous rock. Okay. And now the igneous rock, when they start crumbling down, okay, and they form a layer by layer by layer, then it becomes sedimentary rock. Fine. Sedimentary rock means where fossil fuels are found, fossils are found. Fine. Sometimes we do study on them also, and we find different kinds of ancient animals and plants and everything we do study. Yeah. So your parent rock is that rock. Now, how from the parent rock soil is formed? From the parent rock a soil is formed? So the basic simple explanation for this is, क्या होता है आपका कि जब रॉक जो हमारा होता है वो सुबह जब गर्मी होती है तो रॉक थोड़ा एक्सपैंड करता है. ठीक है, ये साइंस स्टूडेंट वाले को कॉमनली समझ में आएगा. बस इतना याद रखो कि जब गर्मी होती है तो कोई थिंग थोड़ा एक्सपैंड करता है. फाइन. और जब रात हो जाती है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करता है. सो द सेम प्रोसेस गोज ऑन, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन. तो क्या होता है कि वो थोड़ा मतलब क्रम्बल डाउन होने लगता है. ठीक है, वो वीक हो जाता है और फिर वो क्रम्बल डाउन होने लगता है. तो उससे क्या होता है कि आपके सॉइल्स बन जाते हैं. ठीक है, धीरे धीरे इसमें हजारों साल लगता है आपका, बट देन इट विल बिकम सॉइल इवेंचुअली. फाइन. सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट. फाइन. नाउ द सेकेंड थिंग इज क्लाइमेट. ओके. नाउ क्लाइमेट कैसे अफेक्ट करता है? क्लाइमेट ऐसे ही अफेक्ट करता है, जब हीट होता है ना ज्यादा, तो वो ज्यादा एक्सपैंड करता है, विंटर में ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करके रहता है. तो जैसे मैंने बताया कि पेरेंट रॉक्स और क्लाइमेट एक ही तरह का को रिलेटेड है. पेरेंट रॉक क्या है कि पेरेंट रॉक मतलब अगर आपका जैसे हमारा वोल्केनिक इरप्शन से जो रॉक बना है, अगर वो रॉक सॉइल बनता है ड्यू टू द इफेक्ट्स ऑफ द क्लाइमेट, तो वो रॉक कैसा दिखेगा? काला काला दिखेगा, है ना. फ्रॉम दैट रॉक ब्लैक सॉइल विल बी फॉर्म्ड. वेरी कॉमन सेंस. ओके. फिर वेजिटेशन. वेजिटेशन मतलब क्या है आपका कि वेजिटेशन मतलब जो डेड लीव्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ट्विग्स होते हैं, वो सब गिरेंगे, वो डिकम्पोज करेंगे, है ना. डिकम्पोज करके they will add to the fertility of the soil, so they will also become a part of the soil. Fine. And so the same thing goes for the animals as well. Okay. Animals भी decompose करेंगे और उसके बाद they'll get mingled down with the soil, and these plants and animals, dead plants and animals helps in the formation of something called humus. आपने सुना होगा manure, humus. Humus मतलब क्या होता है कि the dead plants and animals, they get mingled down, they get decomposed in the soil.
fine, and they increases the fertility of the soil. Okay, now we will start the same thing. I will teach you again. अभी आप लिख सकते हो. So जैसे मैंने कहा कि it takes 100 to 1000 of years to form soil. Now the basic factors that are involved in the formation of soil are parent rocks, climate, vegetation, animal, microorganisms. Fine. So parent rock means the original rock from which the soils are formed. So here मैंने एक example दे दिया है, like if the original soil is basalt, okay, sorry here soil नहीं होगा, यहाँ पे rock होगा. If the original rock is basalt, then the soil formed is black soil. Okay, basalt rock मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे जो मैंने soil लिखा है ये rock होगा, ठीक है. The original rock is basalt, then the soil formed is black soil. Now basalt मतलब क्या? The volcanic rock. ठीक है, अभी जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था कि जब वोल्केनो इरप्ट होता है तो फिर वो सॉलिडिफाई हो जाता है लावा, तो वो बसाल्ट रॉक बनाता है. ठीक है, सेम और एक एग्जांपल हम दे सकते हैं कि इफ द एंशिएंट क्रिस्टलाइन मेटामॉर्फिक रॉक is there, then the soil formed will be red soil. Fine. तो आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, अभी बस रेड सॉइल ब्लैक सॉइल याद रखो. जब हम रॉक पढ़ेंगे तब आपके लिए ज्यादा आसानी होगी. ठीक है, नाउ क्लाइमेट पे हम आते हैं. अभी मैंने समझाया एक वर्ड है वेदरिंग. ठीक है, वेदरिंग मतलब क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ क्रम्बलिंग डाउन. ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में, है ना, डिग्रेड होते जाना. So why this happens? Due to the influence of climate, as I told you earlier. Now every day, due to the temperature of the sun, the rock expands, and at night it contracts. बहुत सारे स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं और यहाँ पे गलत टर्म है ये. आपका सुबह क्या होता है, देखो मेरे से पहले सुन लो, उसके बाद खुद से लिखना, क्योंकि फिर गलती हो सकता है नहीं तो आपसे. मैंने जैसे बताया कि पेरेंट रॉक मतलब द ओरिजिनल रॉक जो होता है उससे सॉल्ट बनता है, राइट. फिर नेक्स्ट हुआ आपका क्लाइमेट. क्लाइमेट कैसे होता है? क्लाइमेट से वेदरिंग प्रोसेस. क्लाइमेट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग ऑफ द पेरेंट रॉक्स. ठीक है, वेदरिंग ऑफ द पेरेंट रॉक्स में क्या होगा? क्लाइमेट कैसे हेल्प करता है? क्लाइमेट इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, यू नो, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट द रॉक एक्सपैंड्स and at night it contracts. So this expansion and contraction leads to the weathering of the parent rock. समझ में आ गया? बहुत इजी है ये. ठीक है, इसी तरह से क्या होता है कि इसी रेगुलर प्रोसेस में दे ब्रेक अप इनटू सेडिमेंट्स. ओके, एंड देन दीस सेडिमेंट मेक्स योर सॉइल. फाइन. नाउ समटाइम्स इफ द रॉक ब्रेक्स डाउन व्हेन दे आर इन कांटेक्ट ऑफ वाटर. अगर कोई रिवर स्ट्रीम रहेगा आपका, है ना, कोई रिवर स्ट्रीम रहेगा, उसके किनारे किनारे पे बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, है ना. तो उसमें क्या होता है कि लाइम, सिलिका एंड सॉइल रिएक्ट्स विद द वाटर. जो रॉक में जो लाइम, सिलिका और सॉइल रहता है छोटा छोटा, वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है एंड एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ द रॉक्स. फाइन, व्हिच मेक्स देम वीक एंड दे ब्रेक. ओके, गॉट इट. मैं फिर से मैं समझाऊंगी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आराम से समझ में आ जाएगा. हमारा सॉइल है वो बेसिकली से बनता है, पेरेंट रॉक से बनता है. ठीक है ना, सुनाई दे रहा है सबको? सुनाई दे रहा है ना? हाँ, Yes, ma'am. पेरेंट रॉक से बनता है ना. पेरेंट रॉक किस तरह के होते हैं? बहुत सारे टाइप्स ऑफ सॉइल होते हैं. नाउ द टाइप्स ऑफ सॉइल डिपेंड्स ऑन द पेरेंट रॉक फ्रॉम वेयर दे हैव अराइव्ड. ओके, नाउ जैसे पेरेंट रॉक लाइक बसाल्टिक रॉक. बसाल्टिक रॉक इज व्हाट काइंड ऑफ रॉक? इट इज अ वोल्केनिक रॉक. जब वोल्केनिक इरप्शन होता है, लावा आपका सूख जाता है तो वो रॉक बन जाता है, उसे बसाल्टिक रॉक बोलते हैं. जब वो क्लाइमेट की वजह से कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड होता रहता है, उसके बाद क्या होता है कि उसमें जो सॉइल बनता है वो ब्लैक इन कलर होता है, क्योंकि हमारा लावा जनरली जब सॉलिडिफाई हो जाता है तो वो ब्लैक कलर का हो जाता है. फाइन. उसके बाद क्या होता है कि कुछ रॉक जो पानी रिवर स्ट्रीम में होते हैं, तो क्या होता है कि वाटर के कांटेक्ट में जब रॉक आता है तो वाटर क्या करता है, उससे लाइम, सिलिका और छोटे छोटे सॉइल्स जो बने हुए रहेंगे वो सब एक्सट्रैक्ट कर लेता है. ठीक है, तो इन जनरल क्या होता है कि जो रॉक होता है वो वीकर हो जाता है, वो फिर से टूटने लगता है. ठीक है, so with the effect of water also the rock breaks. Fine. Now coming to the third point, that is vegetation. Now how vegetation affects? Vegetation क्या करेगा आपका कि vegetation जब एक ट्री साइकिल कंप्लीट होता है, ठीक है, तो लीव्स क्या होते हैं, पतझड़ में गिरने लग जाते हैं, है ना. पतझड़ में obviously they shed themselves leaves, तो वो leaves, dead leaves, they will get decomposed.
Okay, and they will again mingle out in the soil. Fine. Now animals, their extract when they die decompose and become the soil. Okay. Now इसमें एक बहुत important term है humus. Humus is what? It is the dead remains of the plant and animal. तो ये आप लोग लिख सकते हो, ये बहुत important है. Humus is the dead remain of the plants and animals. Or how does it help? It helps in the fertility of the soil and it helps in making the soil sticky. Two functions of humus likho. It helps in the fertility of the soil and it makes the soil sticky. It helps it bind together. Got it, Pooja? Yes, sir. समझ Yes, टफ नहीं है ये. ठीक है. फिर अगेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. हमारा सॉइल क्या होता है, आपने देखा होगा कि हम लोग कभी कभी बोलते हैं कि मिट्टी में अगर आपको केचुआ मिलता है, अर्थवर्म मिलता है, सो दैट इज गुड. हाउ इट इज गुड? क्योंकि सॉइल क्या होता है, धीरे धीरे रिजिड होने लगता है. ठीक है, पानी गिरता रहता है और रिजिड होने लगता है. तो क्या होगा कि जो रूट्स होंगे, जब प्लांट्स उगेंगे तो उनको डिफिकल्टी होती है अंदर पेनिट्रेट करने के लिए. तो क्या होगा कि आपके अर्थवर्म्स अगर होंगे सॉइल में, अर्थवर्म्स, आंट, टर्माइट्स, दे विल मेक द सॉइल लूज. ओके. वो क्या करेंगे कि उसमें जाएंगे, उसमें रेंगेंगे, तो फिर क्या होगा कि सॉइल लूज होता जाएगा. सॉइल लूज होगा तो आपका इजीली क्रॉप डेवलप कर पाएगा क्योंकि उसका रूट पेनिट्रेट हो पाएगा. फाइन. गॉट इट? yes, sir. सो यही आपके बेसिक रीजंस हैं जिसकी वजह से सॉइल फॉर्मेशन होता है. नाउ वी विल बी कमिंग टू द टाइप्स ऑफ सॉइल. नाउ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी, एक बार में समझ में आ जाना चाहिए. ठीक है. नाउ कमिंग टू एलुवियल सॉइल. ठीक है, आपके 8 टाइप ऑफ सॉइल होते हैं. वी विल बी कमिंग वन बाय वन. ओके. नाउ फर्स्ट वन इज योर एलुवियल सॉइल. ना एलुवियल सॉइल कंस्टिट्यूट्स, अभी मत लिखो, अभी पहले समझ लो, उसके बाद लिखना आसानी होगा, याद रह जाएगा. एलुवियल सॉइल क्या होता है? इंडिया में जितने भी सॉइल पाए जाते हैं उसमें से इट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 40% ऑफ द टोटल सॉइल टाइप. ओके. 40% ऑफ द टोटल सॉइल टाइप एलुवियल सॉइल होता है. एंड एलुवियल सॉइल इज द मोस्ट फर्टाइल टाइप ऑफ सॉइल. फाइन. इट इज मोस्ट फर्टाइल. ओके. ना एलुवियल सॉइल, देखो क्वेश्चन कैसा आता है आपका, कभी कभी क्वेश्चन क्या आता है कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ब्लैक सॉइल. जैसे ब्लैक सॉइल एक तरह का सॉइल होता है जिसका अदर नेम होता है रेग्यूर सॉइल. तो कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है रेग्यूर सॉइल, तो हमने ब्लैक सॉइल पढ़ा होता है, सब कुछ उसके बारे में पढ़ा होगा, पर एग्जाम में रेग्यूर सॉइल आया है तो हमें कुछ भी नहीं आएगा कि क्या है इसका एमसीक्यू, कहाँ से आया है. तो वैसे ही सॉइल्स के डिफरेंट नेम्स याद रखने जरूरी हैं फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. So alluvial soil is also known as riverine soil. ठीक है, ये याद रख लो. Alluvial soil is also known as riverine soil. Okay. Now riverine soil क्यों? देखो, alluvial soil is formed by the depositional work of the river. यहाँ आपको नीचे एक इमेज में दिख रहा होगा, ये फर्स्ट वाला इमेज 40% वाला है. सेकंड वाला जो इमेज है यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये गंगा है ना. ओके, दिस इज गंगा. फाइन. और दिस इज द इंडस, दिस इज गंगा, दिस इज ब्रह्मपुत्र. ओके. ये जहां जहां से जाते हैं वहां वहां पानी का बहाव बढ़ता जाता है. तो पानी का बहाव ऑब्वियसली सॉइल को ऐसे पुशअप करते रहेगा, है ना, पुश करते रहेगा. तो सॉइल क्या होता है, सारा न्यूट्रिएंट्स उसका किनारे चला जाता है. ठीक है. तो जहां जहां से ये रिवर्स जाते हैं वो ज्यादा ज्यादा न्यूट्रिशन लेके जाते हैं सॉइल में. फाइन. तो क्या होता है कि दिस सॉइल, एज आई टोल्ड यू already, that this soil is one of the most fertile soil, very nutritious soil. Why? Because of the depositional work of the rivers. Okay. So that is why it is also known as riverine soil. Fine. तो इससे आपको रिवराइन भी रह जाएगा कि alluvial soil रिवराइन soil क्यों है, क्योंकि ये रिवर से बनता है. ओके. Now where it is found? It is found in river basins and the deltas. Fine. Now what are river basins? अभी से सुन लो, याद रह जाएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है. रिवर बेसिन्स मतलब क्या होता है? द एरियाज प्रोड्यूस्ड बाय द रिवर एंड इट ट्रिब्यूटरीज. ओके. जैसे यहाँ पे गंगा रिवर जा रही है, इफ यू कैन सी माय कर्सर, गंगा रिवर यहाँ से ऐसे जा रही है. ये जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं ऐसे ऐसे स्ट्रीम्स जो उसके किनारे किनारे जड़ जैसे हैं, दोज आर कॉल्ड ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा.
तो उनके बीच में जो जगह है ना वो सब बेसिन बनाते जाएंगे, ठीक है। सो दोज हम्म, आर कॉल्ड रिवर बेसिन्स। एंड डेल्टास मतलब क्या होते हैं, आई विल शो यू अनदर इमेज। डेल्टास मतलब ये आप देख रहे हो, ये रिवर, यहाँ मैंने बताया कि गंगा जा रही है तो ये ट्रिब्यूटरीज बना रही है ऐसे ऐसे इधर उधर, है ना, मतलब उसमें जाके वो लोग मिल रहे हैं। और यहाँ आप देखोगे ये एक रिवर है महानदी नीचे, और महानदी में इमेज को देखते रहो, महानदी में जो है आपका ये जा रहा है और यहाँ पे छोटे छोटे आपको स्ट्रीम्स दिखेंगे। नाउ दीज आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज। ओके, so what are the difference between tributaries and distributaries? Tributaries, you know, they help in the formation of the river, okay, and distributaries are the stream which comes out of the river, ठीक है, लास्ट में जाके डिस्ट्रीब्यूटरीज बनते हैं। देखो हमेशा एक रिवर जाके सी से मिलता है, राइट, तो ये क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होगा, एट द फेस ऑफ द सी हमेशा बनेगा। देखो ये छोटा 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 हमेशा डिस्ट्रीब्यूटरी जो है आपका फेस ऑफ द सी, जब सी से इट इज गोइंग टू गेट मिंगल्ड अप इन द सी, एट दैट टाइम ओनली हियर द डिस्ट्रीब्यूटरीज विल बी फॉर्म। सो ये डिस्ट्रीब्यूटरीज के बीच में जो एरिया होगा, दैट एरिया इज नोन एज डेल्टा। फाइन, गॉट इट। So what are river basin? River basins are formed by the tributaries of the river. Deltas are formed by the distributaries of the river. In both the cases, the river pushes the soil, the river pushes the land. तो उसमें क्या होगा कि सारे न्यूट्रिशियस जो हमारे मिनरल्स है ना, सब कुछ है, वो सब उसी साइड चले जाएंगे। तो इसीलिए जो एलुवियल सॉइल है वो वहां पे पाया जाता है, बेसिन्स और डेल्टास में। गॉट इट, ठीक है। So here हमने वही पढ़ा कि found in river basins and deltas. Okay. Now the color of the soil can be gray, light brown and yellowish. Fine. This is why, अब आप पूछोगे कि ऐसा क्यों कि अलग अलग कलर के सॉइल दिखता है जब all three of them are alluvial soil, depending upon the nutrition present. ठीक है, अगर किसी में ज्यादा न्यूट्रिशन होगा ऑब्वियसली वो लाइट ब्राउन दिखेगा, ज्यादा डार्किश दिखेगा, ठीक है, और सब्सिक्वेंटली येलोइश और ग्रेश दिखेगा डिपेंडिंग अपॉन द न्यूट्रिशनल वैल्यू। फाइन। नाउ इस सॉइल का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि दिस इज रिच इन क्ले। ओके, नाउ क्ले से रिच होने से व्हाट बेनिफिट इट विल गिव अस, if it is more rich in clay, if any of the soil is rich in clay, then it will give you more water holding capacity, it can hold more water, ठीक है। तो अगर इसको ज्यादा वाटर ये अब्सॉर्ब कर सकता है तो उससे क्या होगा कि इसमें अच्छे क्रॉप कल्टीवेशन होंगे, ठीक है। तो इसीलिए इट इज रिच इन क्ले, उसमें ब्रैकेट में आप लिख सकते हो इट हैज, क्ले गिव्स मोर वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, more water retention होगा। water retention मतलब water holding capacity, it can absorb more water, so it is ideal for the growth of the crops like sugarcane, paddy, wheat and other cereals and pulses, everything can grow here because it is very alluvial. Alluvial means it is very nutritious. Why? Because of the depositional work of the rivers, it is generally found in river basins and deltas, and it is rich in clay, so it has more water retention capacity. Fine. Now the last point, due to high fertility in the region with the alluvial soil, ठीक है, यहाँ पे ज्यादा फर्टिलिटी है, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ऑब्वियसली ज्यादा पॉपुलेशन आके रहेगा, है ना, क्योंकि उनको कल्टीवेशन का स्कोप ज्यादा मिलेगा। हाँ, तो इसीलिए हमारे ज्यादा रिवर्स आपके नॉर्दर्न प्लेन में ज्यादा बेसिन्स बनाते हैं, इसीलिए ज्यादा लोग नॉर्दर्न प्लेन्स में रहते हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्रॉप्स भी ज्यादा उगता है। फाइन, दिस इज अ कॉमन सेंस थिंग, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आएगा पर ये याद रखने के लिए अच्छी चीज है। ओके, नाउ ये हमारा कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड होता है, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द सिंध टू बांग्लादेश। यहाँ सिंध आपका पाकिस्तान से स्टार्ट होता है, जैसे यहाँ पे ये रहा, इस इमेज में देखो, यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है ये रिवर, इंडस रिवर, वो सिंध से स्टार्ट होता है विच इज नाउ इन पाकिस्तान, अर्लियर इट वाज इन इंडिया। तो सिंध से स्टार्ट होके ये पूरा जाता है बांग्लादेश तक। व्हाई? बिकॉज रिवर गंगा एंटर्स इनटू द बांग्लादेश एंड देन इट जॉइंस बे ऑफ बंगाल। आपको लगता होगा कि जो गंगा है वो सीधा इंडिया से जाके मिल जाती है बे ऑफ बंगाल में, नहीं, शी ट्रेवल्स अगेन, that river travels again through the Bangladesh and then it joins in the Bay of Bengal. Fine. तो इसका एक्सटेंशन कितने तक होगा alluvial soil का, फ्रॉम सिंध इन पाकिस्तान टू बांग्लादेश। फाइन।
ना इट इज प्रीडोमिनेंट इन डेल्टास, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे बहुत सारे डेल्टास बना रहा है, ये देखो ये सारे डेल्टास बना रहा है ना। व्हाट इज डेल्टा? डेल्टा इज द रीजन दैट इज फॉर्म्ड बाय द डिस्ट्रीब्यूटरीज ऑफ द रिवर एट द फेस ऑफ द सी। गॉट इट? ना देखो जैसे एक एग्जांपल है सुंदरबन डेल्टा, यहाँ पे आपका सुंदरबन डेल्टा, ठीक है, ये बड़ा वाला जो ऊपर दिख रहा है दिस इज सुंदरबन डेल्टा, ओके, फॉर्म्ड बाय द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र बोथ, ओके। और यहाँ पे आपका महानदी डेल्टा है, यहाँ पे गोदावरी डेल्टा है, यहाँ पे कृष्णा डेल्टा है, यहाँ पे कावेरी डेल्टा है। देखो इससे ना तुम लोग को और एक चीज का फायदा हो रहा है, यू आर लर्निंग द रिवर्स, ठीक है, द रिवर्स विच फ्लो ईस्टवर्ड्स। The question comes like this: which river out of these flow eastwards? क्योंकि some of the rivers will be flowing this side as well. Fine. तो this is a common sense कि अभी याद हो गया कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, और महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, these rivers for sure flow eastwards and they get mingled up in Bay of Bengal, not Arabian Sea. Fine. तो क्वेश्चन के हिसाब से ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखो मैम यही 30 से एक बार सब रिपीट है करेंगे? कोरिलेशन, और कम पढ़ाया जाएगा पर उस पढ़ाई में क्या होगा कि आपको बहुत सारी चीजें एक बार में सीखने को मिल जाएंगी। इससे थोड़ा सा ब्रेन को शार्प बनाना पड़ता है कि अगर मैं पढ़ा रही हूँ ऐसे कि यहाँ पे डेल्टा बनाता है तो आपको साइड बाय साइड ये भी याद रखना है कि ओके दीज रिवर्स आर गेटिंग मिंगल्ड अप इन बे ऑफ बंगाल सो दे फ्लो ईस्टवर्ड्स। तो आपका क्या होगा कि जब आप रिवर चैप्टर पढ़ोगे तब आपको ऑटोमेटिकली याद रहेगा कि ओके एटलीस्ट मुझे इतना याद है कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, उसके बाद महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, दीज आर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। फाइन। सी दीज आर द क्लास वी आर टेकिंग टू क्रैक द एंट्रेंस एग्जाम। इसको पढ़ के हमको कोई यूनिवर्सिटी एग्जाम या स्कूल कॉलेज का एग्जाम नहीं देना है, बार बार ये चीज मैं एम्फोसाइज करूंगी। इसीलिए जितने टाइम पढ़ते हो ध्यान से पढ़ो, ठीक है, को रिलेट करने की कोशिश करो, ठीक है। now the types of alluvial soil, okay, how many types of alluvial soil are there? Now what is the basis of this typification of alluvial soil? That is the basis of age, kitna purana hai ek soil dusre soil se। So there is one type of soil that is called khadar alluvial soil, there is another type of soil called bangar alluvial soil। Fine। Now खादर is what? खादर is newer, ठीक है। खादर क्या होता है कि जब नया नया वाटर लेके आता है, मैंने जैसे कहा कि बेसिन में, डेल्टा में जो रिवर स्ट्रीम है, नया नया दैट सॉइल इज कॉल्ड बांगर, सॉरी दैट सॉइल इज कॉल्ड खादर, ओके। ना बार बार उस पर डिपोजिट होते 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 जो लास्ट वाला जो पुराना हो गया होगा उसे हम कहेंगे बांगर, ठीक है। सो बांगर इज द older alluvium and khadar is the newer one, so the newer one is more fertile, fine, it is more nutritious। तो आपका खादर is lighter in color and has newer deposits and khadar is more fertile, fine। now bangar is older alluvium consists of lime, देखो इसमें मैंने यहाँ पे लिखा है कि लाइम नोड्यूल्स एंड कंकर। सो बांगर में ऐसे याद रखो कि ज्यादा कंकर होते हैं तो उसमें ज्यादा न्यूट्रिशन नहीं होगा, ठीक है, ज्यादा न्यूट्रिशन होगा, ज्यादा फर्टाइल होगा खादर, ठीक है। और आपका बांगर में बांगर हैज अ क्लेई कंपोजिशन, ठीक है। तो आप अगर दो टैबुलेशन बनाओगे तो उसमें ऐसे लिख सकते हो खादर बांगर, खादर में लिख सकते हो लाइटर इन कलर, ठीक है, और बांगर में लिख सकते हो क्लेई कंपोजिशन, खादर में लिख सकते हो मोर फर्टाइल, बांगर में लेस फर्टाइल, खादर हैज मोर nutritious minerals, bangar has more कंकर, fine। now ये जो alluvial soil है this is suitable for growing both rabi as well as kharif crops, okay, क्योंकि सब उसमें उगेंगे क्योंकि it is very nutritiously available, okay। so rabi kharif दोनों crops उसमें आराम से उगेंगे, fine। now ये कहाँ पाए जाते हैं? this is very important, these are found in बिहार, ठीक है, जहां से भी गंगा जाएगी, है ना, बिहार। देखो इससे और एक चीज हमको याद रखने में आसानी होगा कि गंगा और ब्रह्मपुत्र किस स्टेट से क्रॉस करती है, ठीक है। तो आपके गंगा ब्रह्मपुत्र कहाँ कहाँ से क्रॉस करेगी? बिहार, वेस्ट बंगाल, यूपी, ठीक है, यहाँ से आपकी गंगा क्रॉस करती है। और द ब्रह्मपुत्र वैली ऑफ असम और देन पंजाब, हरियाणा एंड द कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया, ठीक है।
तो आप एकदम आराम से याद रखोगे कि कोस्टल प्लेन्स में तो होगा ही होगा अलुवियल सॉइल, क्योंकि कोस्टल प्लेन्स में आके सारे रिवर्स मिल रहे होंगे, सो इट विल मेक द डेल्टास। ठीक है, सो कोस्टल प्लेन्स में होगा ही होगा, प्लस जहाँ जहाँ से रिवर बेसिन बनता होगा, जहाँ जहाँ ट्रिब्यूटरी जाके मिलती होगी, दैट इज योर बिहार, वेस्ट बंगाल, यूपी, ओके, द ब्रह्मपुत्र वैली। जस्ट अ सेकेंड। Okay, which one you want me to repeat, Pooja? Just type it. Which portion? टाइप कर दो आप कि आपको कौन सा वाला समझ में नहीं आया। ईस्ट रिवर्स, अच्छा ठीक है। ईस्ट रिवर्स मतलब क्या है कि ये आप पिक्चर देख रहे हो, तो मैंने कहा कि यहाँ पे जाके सब डेल्टा बनाते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये जितने भी रिवर्स हैं, ये कौन सा वाला रिवर है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। दिस रिवर इज महानदी, दिस रिवर इज गोदावरी, दिस रिवर इज कृष्णा एंड दिस रिवर इज कावेरी। सो ये जितने भी रिवर्स हैं आपके, अभी मैंने जो बताया 6-7 रिवर्स जो आपके हैं, ये सारे के सारे रिवर ईस्टवर्ड्स फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, ईस्टवर्ड्स फ्लो कर रहे हैं मतलब ये बे ऑफ बंगाल से जाके मिलेंगे, क्योंकि दिस इज बे ऑफ बंगाल एंड दिस साइड इज योर व्हाट, अरेबियन सी। फाइन। तो इसीलिए ये सारे जो रिवर हैं, आपको इससे और एक चीज याद रखने को फैक्ट मिल गया कि दीज ऑल रिवर्स आर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। फाइन। तो अगर आपको क्वेश्चन में आता है कि which is not a east flowing river, ठीक है, तो आपके 4 ऑप्शन रहेंगे, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और एक रिवर रहेगा। तो ऑब्वियसली दूसरा जो लास्ट वाला रिवर होगा वही होगा, क्योंकि हमको पता है कि बाकी सारे जो 3 रिवर हैं वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। समझ में आया? चैट बॉक्स में लिखो पूजा, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ओके, तो हमारा एलुवियल सॉइल खत्म हो गया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एलुवियल सॉइल में कि इसमें कौन कौन से मिनरल होते हैं। ठीक है, सो एलुवियल सॉइल इज रिच इन पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, लाइम एंड कार्बन कंपाउंड्स। दीज आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन में आ सकता है, पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड, लाइम एंड कार्बन कंपाउंड। और वो डेफिशिएंट किस चीज में होते हैं, नाइट्रोजन में एंड ह्यूमस में। तो इससे आपको पता चलता है कि वहाँ पे डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ज्यादा नहीं मिलेंगे, क्योंकि रिवर एक्टिविटी है, वो सारा भसा के ले जाएगी। इसीलिए यहाँ पे ये डेफिशिएंट किसमें है, नाइट्रोजन एंड ह्यूमस में। एंड इट इज रिच इन पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड, लाइम एंड कार्बन कंपाउंड्स। ओके, नाउ आई हैव टॉट you guys a few things. Just tell me कि नाइट्रोजन डेफिशिएंसी यहाँ पे है, तो यहाँ के जो खेत होंगे वहाँ पे हमें क्या उगाना चाहिए। Just type it in the chat box. If this soil is deficient in nitrogen, तो मुझे क्या करना चाहिए वहां पर नाइट्रोजन डेफिशिएंसी घटाने के लिए, क्या करना चाहिए मुझे। एग्जैक्टली प्रलिप्ता, वेरी गुड। पल्सेस उगाने चाहिए। व्हाई? बिकॉज पल्सेस आर लेग्यूमिनस। फाइन। देखो ऐसे ही कोरिलेट करना है, दिस इज कॉमन सेंस, ऑल अबाउट कॉमन सेंस। इसीलिए जनरल स्टडीज बोला जाता है। ये सब जाके ये क्या दिखाता है आपका, ये सब पढ़ के आप आर्मी ऑफिसर बनोगे या पायलट बनोगे तो आपको कहाँ से यूज में आएगा, पर ये दिखाता है कि आपका कॉमन सेंस कितना है, योर अब्सॉर्बिंग कैपेसिटी इज हाउ मच। तो अगर वो नहीं होगा तो फिर आप कैसे ऑफिसर बनोगे, मतलब देश को कैसे संभालोगे, प्रोटेक्ट कैसे करोगे। तो इसलिए जनरल स्टडीज होता है कि बेसिक चीजें इंसान को पता होनी चाहिए। वो प्लेन उड़ा रहा है, उसको एक पैच ऑफ लैंड दिखता है, दैट लैंड इज ब्लैक इन कलर, तो उसका ये दिमाग में होना चाहिए कि ओके दिस इज ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल है मतलब आपके कॉटन उगते होंगे, कॉटन उगते हैं मतलब दिस इज अ कमर्शियल क्रॉप, कमर्शियल क्रॉप मतलब यहाँ पे बहुत सारे फार्मर और इंडस्ट्री होगी, मुझे यहीं पे ही मिसाइल दागना है ना। तो ये सब आपका इसमें यूज में आता है। ये सब जब पढ़ते हैं हमें बोरिंग लगने लगता है कि क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, ये सब क्या यूज में, अगर नहीं ये यूज में आता है, अगर आपने अभी ध्यान से इंटरेस्टिंग वे में सुना होगा, then it will help you a lot. और this will save you a lot of time if you have heard it here properly. Fine. तो हम यहाँ पे पल्सेस क्यों उगाएंगे, पूजा तुम ध्यान से सुन लो कि मैंने कहा कि एलुवियल सॉइल्स आर डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन एंड ह्यूमस। ठीक है, तो ह्यूमस हमें समझ में आ गया कि ह्यूमस आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड लीव्स एंड प्लांट रिमेनिंग्स एंड योर एनिमल्स। नाइट्रोजन क्यों,
क्योंकि नाइट्रोजन अगर हमारा डेफिशिएंट है तो हम क्या करेंगे, वहां पे हमें पल्सेस उगाने चाहिए। पल्सेस उगाने से क्या होगा कि पल्सेस आर लेग्यूमिनस। उसका मतलब क्या होता है कि देयर रूट्स हैव अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन फिक्स द नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर। ठीक है। और स्लोली हिंदी में बोलती हूँ मैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, पल्सेस हम उगाएंगे तो पल्सेस के रूट में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हमारे हवा में जो नाइट्रोजन होते हैं उसको खींच के ले आते हैं। ठीक है, उसको फिक्स कर देते हैं सॉइल में, तो उससे हमारा नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ जाएगा। फाइन। अब हम लोग नेक्स्ट में जाएंगे। हमारा एलुवियल सॉइल खत्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं ब्लैक सॉइल। देखो अब मैं जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगी क्योंकि इतना इतना टाइम लेके अगर तुम लोग समझोगे तो फिर इट इज वेरी डिफिकल्ट। फाइन। now black soil is formed by the weathering of the basaltic rocks। मैंने कहा basaltic is hollow rock, right? मैंने पहले ही बताया था कि it will be black in color। fine। now it is the residual soil। देखो यहाँ पे उसका दूसरा नाम है आपका रेग्यूर सॉइल। ठीक है, it is also known as the residual soil। why? because it is formed at the place of its origin over the underlying rocks। इस सेंटेंस का मतलब क्या है? यहाँ पे जो आप एक ब्लैक कलर का पैच देख रहे हो, यहाँ पे सबसे ज्यादा बेसाल्टिक सॉइल पाए जाते हैं। ठीक है, बेसाल्टिक रॉक्स पाए जाते हैं जिससे ब्लैक सॉइल बनता है। मतलब है कि हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ईयर्स अगो यहाँ पे बहुत सारे वोल्केनो होते होंगे। ठीक है, तो ये वोल्केनो जब इरप्ट किए, बहुत ज्यादा इरप्ट किए, उसके बाद बेसाल्टिक रॉक्स छोड़ गए और वो बेसाल्टिक रॉक ड्यू टू द एक्शन ऑफ द क्लाइमेट आपके क्या बन गए, धीरे धीरे ब्लैक सॉइल बन गए। फाइन। तो इसीलिए लिखा हुआ है कि रेसिडुअल सॉइल, दिस इज अ टाइप ऑफ रेसिडुअल सॉइल। व्हाई रेसिडुअल सॉइल? कि जो रेसिड्यूज बच गए बसाल्टिक के, वो उसके ही वेदरिंग से हमें ब्लैक सॉइल मिला। फाइन। नाउ कॉमन सेंस, दिस इज डार्क इन कलर, सुटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। ठीक है, ये चीज याद रखना कि ब्लैक सॉइल जो होता है ना उसमें सबसे अच्छे से कॉटन उगता है। फाइन। सो द ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज रेग्यूर सॉइल और ब्लैक कॉटन सॉइल। ये बहुत बार क्वेश्चन में आता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स सब कुछ जान के भी गलती करके आते हैं, क्योंकि रेग्यूर सॉइल, आपका जो रेग्यूर सॉइल है दैट इज आल्सो नोन एज ब्लैक सॉइल। फाइन। रिवराइन सॉइल मतलब क्या है पूजा? put me in just put it the answer in the chat box। riverine soil means which type of soil? रोहित, you also you can put an answer chat box में लिखो। riverine soil मतलब which type of soil? जल्दी जल्दी। रिवराइन सॉइल मतलब एल्यूमिनियम नहीं, एलुवियल सॉइल। ठीक है, तुम सही लिख रहे हो पर एल्यूमिनियम तो एक मेटल हो गया। एलुवियल सॉइल। ठीक है। एंड पूजा, यू नीड टू फोकस मोर, यू आर स्टार्टिंग ज्योग्राफी एट योर कॉलेज, तो आपको तो ये सब में मजा आना चाहिए। ठीक है, एक मिनट। हाँ, वेरी गुड पूजा, एलुवियल सॉइल। ठीक है, तो वैसे ही ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज रेगर सॉइल, और यहाँ पे कॉटन सबसे ज्यादा उगता है। ठीक है, और आपका ब्लैक सॉइल में कहाँ पे सबसे ज्यादा ब्लैक सॉइल पाया जाता है? ब्लैक डेक्कन ट्रैप। सो दिस इज कॉल्ड द ब्लैक डेक्कन ट्रैप। नाउ दीज कॉन्स्टिट्यूट्स विच स्टेट्स? कहाँ, किस स्टेट के पार्ट्स में ये ब्लैक डेक्कन ट्रैप पाया जाता है? पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, आंध्र प्रदेश, ठीक है, तेलंगाना, कर्नाटका एंड इवन सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान। यहाँ सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान। ठीक है, तो ये लिख लो, डेक्कन ट्रैप में पाया जाता है महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका। फाइन। नो, इसमें मिनरल्स क्या क्या ज्यादा पाए जाते हैं? इट हैज अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ लिम्का पी। ये मैंने इसे याद रखने के लिए बनाया है। लिम्का पी मतलब क्या होता है? अगर आप अपने राइट हैंड साइड में देखोगे, लिम्का पी मतलब होता है लाइम। ठीक है, एल से लाइम, आई से आयरन, एम से मैग्नीशियम, सी से कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, और पी से पोटैश। फाइन। तो याद रख लो कि इट इज रिच, मतलब इसमें बहुत सारा लिम्का पी है। लिम्का पी मतलब लाइम, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटैश। फाइन ना। और एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इट इज डेफिशिएंट इन एनओपी। ठीक है, एनओपी मतलब क्या? नाइट्रोजन। ठीक है,
ये आपका लिखा नहीं हुआ है, नाइट्रोजन ऑर्गेनिक मैटर, ऑक्सीजन नहीं, ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, नाइट्रोजन ऑर्गेनिक मैटर, और पी से फॉस्फोरस, नॉट पोटैश। लिम्का पी में जो पी था वो पोटैश था, एनओपी में जो पी है दैट इज फॉस्फोरस। प्लीज डू नॉट कंफ्यूज, अभी जब मैं बोल रही हूँ वो लिख लो। ब्लैक सॉइल में ज्यादा लिम्का पी है। लिम्का पी क्या है? लाइम, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटैश। उसमें कमी किस चीज की है? एनओपी की। क्या कमी है? नाइट्रोजन ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर मतलब क्या? ह्यूमस, ठीक है। सो इट इज सेम एज एलुवियल सॉइल, उसमें भी नाइट्रोजन था, उसमें भी ह्यूमस था, ठीक है, डेफिशिएंट। और पी से यहाँ पे फॉस्फोरस। फाइन। नाउ हम नेक्स्ट में चलते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू द रेड सॉइल। फाइन। Now, red soil is formed from the ancient crystalline metamorphic rock. ये आपको याद रखना है। Ancient crystalline metamorphic rock से बनता है, जो parent rock है, जो मैंने starting में बोला था कि parent rock से एक soil बनता है। तो red soil का parent rock क्या है? देखो आपको notes कैसे बनाना है। red soil, नीचे point parent rock, parent rock में ancient crystalline metamorphic rock, ठीक है। ऐसे स्मॉल नोट्स बनाओ। ऑलरेडी यहाँ पे मैंने बहुत शॉर्ट करके लिखा है, पर उसको और छोटा बनाने के लिए पेरेंट रॉक दैट इज डैश एंशिएंट क्रिस्टलाइन मेटामॉर्फिक रॉक कहाँ पाया जाता है? पेनिनसुलर प्लेट्यू में। पेनिनसुला मतलब क्या होता है? ये जो आपका ट्रायंगुलर पार्ट है जो पानी से घिरा हुआ है इंडिया का। तो यहाँ पे देखो ये जो थोड़ा सा रेड रेड दिख रहा है, ये सारा जो है आपका, यहाँ पे आपका रेड सॉइल मिलता है, ठीक है। रेड सॉइल बनता कैसे है? सिंपल, विथ प्रोलॉन्ग्ड वेदरिंग बाय रेनफॉल दीज रॉक्स ब्रेक अप टू फॉर्म सॉइल, ठीक है। तो आप इसमें क्या लिखोगे? पॉइंट। देखो मैं आपको पॉइंट्स लिखना भी सिखा रही हूँ, क्योंकि रिवीजन में ना इतना सारा भी लिखोगे ना जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा है, पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो आपने रेड सॉइल हेडिंग डाला, उसके बाद क्या डाला? पेरेंट रॉक डैश क्रिस्टलाइन मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। फिर उसके ब्रैकेट में डाल दिया पेनिनसुलर प्लेट्यू। फिर लिखो कि वेदरिंग बाय रेनफॉल, ठीक है। बस ऐसे, वेदरिंग बाय रेनफॉल, खत्म। उसके बाद, क्योंकि वेदरिंग जो होता है अभी मैंने बताया कि उससे एक्सपेंशन, रेनफॉल से क्या होगा? कंटिन्यूअसली एक चीज एक रॉक पे पड़ती रहेगी, रेनफॉल, तो उससे थोड़ा थोड़ा तो वो सेडिमेंट होगा, तो सॉइल बनता है। क्या है कि डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस लिखो कि रेड इन कलर, ठीक है। रेड किस लिए? विद इन ब्रैकेट आयरन ऑक्साइड ज्यादा होता है, ठीक है। इस सॉइल का नाम रेड सॉइल क्यों है? क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड ज्यादा होता है, ठीक है। और समटाइम्स इट लुक्स ब्राउन एंड ग्रे एज वेल, ठीक है। और समटाइम्स इट लुक्स इवन येलो। व्हाई येलो? अगर इसमें पानी ज्यादा होता है तो कॉमन चीज है, अगर ये रेड दिख रहा है तो आयरन ऑक्साइड ज्यादा है, ब्राउन और ग्रे दिख रहा है तो आयरन ऑक्साइड थोड़ा सा कम है, अगर येलो दिख रहा है तो पानी ज्यादा है। इट इज मोर हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड मतलब मोर वाटर। फाइन। नाउ ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो आपको ये रेड देखो, और एक कॉमन सेंस है यहाँ पे। मैंने आपको बताया था कि ये डेक्कन ट्रैप है। ये देखो स्क्रीन पे अपने देखो, यहाँ पे मैंने बताया था कि ये डेक्कन ट्रैप है ना, जहाँ पे ब्लैक सॉइल मिलता है। रेड सॉइल को देखोगे, इट कंप्लीटली सराउंड्स द डेक्कन ट्रैप। देखो, इसने पूरा डेक्कन ट्रैप को सराउंड करके रखा है, वहीं पे ही रेड सॉइल मिलता है। तो रेड सॉइल कहाँ कहाँ मिलता है आपका? कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है, इवन इन सम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड आल्सो इन द कोंकण कोस्ट। कोंकण कोस्ट कौन सा है? ये देखो, ये याद रखो, क्योंकि मैप में कोंकण कोस्ट अलग से आ सकता है। This side is known as Konkan coast. Fine. This is the Konkan coast. Okay. हाँ, ठीक है। नाउ इसका हम क्या करेंगे कि इट इज पोरस, एंड इट इज पोरस मतलब इसमें बहुत सारे छोटे छोटे होल्स होते हैं। सो इट इज लूज इन नेचर। ओके, द सॉइल इज लूज इन नेचर एंड इट इज हाई आयरन ऑक्साइड कंटेंट। अभी मैंने बताया था कि ये रेड इसलिए दिखता है क्योंकि आयरन ऑक्साइड होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आ सकता है व्हाई रेड सॉइल इज रेड इन कलर? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। ये ऑक्साइड वो ऑक्साइड ऐसे आएगा, तो आपको आयरन ऑक्साइड याद रखना है। एंड इट हैज अ पीएच ऑफ 6.6 to 8, ठीक है। पीएच मतलब क्या होता है? जिन्होंने साइंस पढ़ा है उनको समझ में आएगा, जिन्होंने साइंस नहीं पढ़ा है, पूजा, पीएच का मतलब आपको होता है, फिर भी आपने 10th में शायद पढ़ा होगा पीएच। हाँ मैम, पूजा, पीएच, जस्ट राइट हाँ टू मी द अभी चैट बॉक्स, पीएच, डू यू नो व्हाट इज पीएच? पूजा,
पीएच का मतलब होता है ना, हाँ, कितना एसिड है कितना बेसिक है, ठीक है, इससे हमें पता चलता है वैल्यू, जितना 7 के ऊपर जाएगा उतना बेसिक होता जाएगा, अल्कलाइन होता जाएगा, ठीक है, और जितना 7 के नीचे रहेगा उतना एसिडिक बढ़ता जाएगा। तो दिस इन जनरल अब हम क्या बोल सकते हैं, ये थोड़ा सा एसिडिक है और थोड़ा सा बेसिक है, बोथ, ठीक है। फिर इसके बाद देखो कि इट इज पुअर इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ऑर्गेनिक मैटर, ये लिख लो, दिस इज इम्पोर्टेंट। तो अब तक हमने जो सॉइल पढ़े उस सब में नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक मैटर की कमी ही है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम एंड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। एंड दिस soil needs irrigation support. Now what does irrigation support means? पूजा ने अटेंड नहीं किया था, रोहित का आज ये पहला क्लास है, कैन यू जस्ट टेल मी प्रलिप्ता व्हाट डज इरिगेशन मींस इन द चैट बॉक्स? Providing water to the plants or crops manually. Yes, very good. Additional supply of water when the natural supply of water is not enough, है ना, तो हम इरिगेशन करते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ इरिगेशन, कनाल, ये वो, ठीक है, तो यहाँ पे इरिगेशन नीडेड होता है। नाउ वी विल कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल, दैट इज, अभी तक हमने 3 सॉइल पढ़ लिया, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल। नाउ कमिंग टू द फोर्थ टाइप, दैट इज कॉल्ड लैटेराइट सॉइल, ठीक है ना। लैटेराइट सॉइल का पेरेंट रॉक क्या है? लैटेराइटिक रॉक्स, लिख लो, पेरेंट रॉक लैटेराइटिक रॉक्स, ठीक है। Now, it is found in the regions of heavy rainfall with alternating wet and dry period, ठीक है। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, यही जो हमने स्टार्टिंग में बोला था कि रीजंस क्या है, क्लाइमेट पॉइंट में हमने लिखा था कि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता रहेगा, ठीक है। तो जहाँ पे वेट एंड ड्राई पीरियड दोनों हो और जहाँ पे हैवी रेनफॉल हो, हैवी रेनफॉल की वजह से क्या होता है, लाइम एंड सिलिका आर लीच्ड आउट। लीचिंग का मतलब क्या होता है, एक्सट्रैक्शन, ठीक है। सो हियर ड्यू टू द, देखो लैटराइटिक, देखो मैं बता रही हूँ, लैटराइटिक रॉक्स जो रहेगा उसके ऊपर बारिश होगा, ठीक है, और गर्मी और आपका बहुत ज्यादा वेट कंडीशंस रहेगा, तो उससे क्या होगा कि लैटराइटिक रॉक में जो लाइम और सिलिका था दैट विल बी एक्सट्रैक्टेड आउट, ठीक है, और उसमें बहुत ज्यादा आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम कंटेंट रह जाएगा, फाइन। तो वो क्या होगा कि वो आपका जस्ट, वो आपका बच जाएगा, फाइन। और वो धीरे धीरे जो सॉइल बनेगा, लैटराइटिक सॉइल में ज्यादा आयरन ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम रहेगा, समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल सी चीज है। एक पेरेंट रॉक पे क्लाइमेट अफेक्ट करता है, रेनफॉल अफेक्ट करता है, तो कुछ क्या होते हैं वैसे ही टूट जाते हैं, कुछ क्या होता है उनमें लीचिंग होता है, लीचिंग मतलब उनसे कुछ कुछ बह के निकल जाता है इंपॉर्टेंट मिनरल्स, जैसे लैटराइटिक सॉइल में हो रहा है, लैटराइटिक सॉइल में लाइम और सिलिका निकल जा रहा है, तो उसमें क्या बच जा रहा है, आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम, फाइन। now based on the location there are two types of laterite soil, ठीक है, लोकेशन के बेसिस पे। अगर अपलैंड लैटराइट्स मतलब अगर ऊपर ऊंचे जगह में पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड अपलैंड लैटराइट्स। और वैसे लैटराइट एरियाज में हम क्या क्या उगा सकते हैं, टी, रबर, सिंकोना मत याद रखो, टी रबर याद रखो, ठीक है। सिंकोना फिर भी लिख लो, अगर एग्जाम में आ गया तो टी, सिंकोना एंड रबर, फाइन। देखो सिंकोना अगर याद नहीं रहेगा ना, क्या करना, उसको तुरंत गूगल कर लेना, उसका इमेज दिमाग में रहेगा ना, इट प्लेज अ गुड रोल इन, यू नो, गुड पार्ट इन जस्ट परफॉर्मिंग बेटर इन द एग्जामिनेशन। सिंकोना रटोगे तो बहुत टाइम लगेगा, सिंकोना तुरंत गूगल कर लोगे तो फिर वो बहुत इजीली आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो जो अपलाइन लैटराइट्स होता है उसमें हम टी, रबर और सिंकोना उगा सकते हैं, और जो लो लैंड लैटराइट होता है, जो थोड़े नीचे जगह पे जो लैटराइटिक सॉइल होता है वहां पे हम पैडी उगा सकते हैं, फाइन, ठीक है। तो फिर देखो इट इज ऑल्सो रेड इन कलर, ठीक है ना। वाई रेड इन कलर, पूजा, just tell me Pooja, why lateritic soil is red in color? Just put it in the chat box. Why lateritic soil is red in color? आयरन की वजह से, आयरन ऑक्साइड की वजह से, ठीक है। हाँ रोहित, गुड।
आयरन ऑक्साइड की वजह से, आयरन की वजह से मत लिखना, आयरन ऑक्साइड की वजह से हमारा रेड इन कलर होता है, ठीक है। नाउ अगेन, तो इट इज रिच इन आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम, ठीक है। यहाँ पे देखो सेंटेंसेस इधर उधर लिखे हुए हैं, तुम लोग को क्या लिखना है, हर एक सॉइल का हेडिंग कैसे होगा, सॉइल नेम, पैरेंट रॉक, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ पाया जाता है, टाइप्स क्या क्या है अगर कोई टाइप है तो, फिर उसमें रिच इन, डेफिशिएंट इन, ठीक है। इस तरह से करके अपने नोट्स बनाना है। सो योर लैटेराइट सॉइल इज रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड, एंड अपार्ट फ्रॉम आयरन ऑक्साइड व्हाट एल्स इज प्रेजेंट, aluminium is also present, right? Now lateritic soil is poor in nitrogen, lime and rich in iron, ये तो हमें पता है, it is rich in iron oxide, it is poor in nitrogen and lime। तो अभी तक हमने जितने भी सॉइल पढ़े उसमें नाइट्रोजन की कमी है ना, तो पल्सेस उगाना तो बहुत ही जरूरी है। फाइन। नाउ इट इज अ वेरी लूज सॉइल, ठीक है। तो लो कंटेंट ऑफ क्ले, तो इसको आप नोट्स में कैसे लिखोगे, ऐसे एक डाउनवर्ड एरो दोगे, ठीक है, एक डाउन साइड एरो दोगे, क्ले, मतलब लेस क्ले हो जाएगा। You cannot hear me. Can you guys hear me? सुनाई दे रहा है? Yes, Then ma'am. maybe Priyam, you have some network issue. Just check. Can you hear me now, Priyam? Ma'am, it is very feeble. Can you hear me? Just put it in the chat box. See, there is some setting error due to which I cannot hear you guys. You have to put it in the chat box. तो मैंने डिसाइड किया है कि क्लास के एंड के बाद मैं 5 मिनट के लिए आपको मोबाइल से लॉग इन करूंगी फिर से, और आप लोगों से बात कर लूंगी पर्सनली, ठीक है। तो उसमें शायद सुनाई दे। There is some error, maybe there is some network problem, Priyam. I'm trying my best. Pralita, can you hear me? Pooja, can you hear me? Yes, ma'am. You can hear me, right? Yes, ma'am. Okay, fine, Priyam. तो कोई नेटवर्क इशू होगा, एटलीस्ट यू बी देयर इन द क्लास, व्हाटएवर इज बीइंग टॉट इट इज वेरी इजी, तो आप एटलीस्ट लिख लो उसको, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया कि आपको कैसे नोट्स बनाना है। ऐसे करके लिखना आपको, ठीक है। देखो ऐसे, लेस क्ले, ठीक है। सो डाउनवर्ड्स एरो एक देना है, लेस क्ले। इतना लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आता है, ठीक है। नाउ वन मोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस सॉइल इज इट हैज लो फर्टिलिटी, ठीक है। व्हाई? बिकॉज ड्यू टू हाई एसिडिटी एंड लो मॉइस्चर रिटेंशन, ठीक है। तो ऐसे लिखोगे soil, और कम पानी लेता होगा तो ऑब्वियसली कुछ नहीं उगेगा वहां पे, तो इसीलिए वहां पे लो फर्टिलिटी है, ठीक है। तो आप लिख दो लो फर्टिलिटी, विद इन ब्रैकेट्स लिख दो ड्यू टू हाई एसिडिटी एंड लो मॉइस्चर रिटेंशन, ठीक है। एंड हियर मैन्यूरिंग रिक्वायर्ड ऑन क्रॉप ग्रोइंग, ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे लो मॉइस्चर रिटेंशन है, हाई एसिडिटी है, तो एक्सटर्नल सोर्सेज जरूरत पड़ेंगे ना, एक्सटर्नल हेल्प। So that's why your irrigation also, then your manuring also, these are required. Fine. Let's moving on to the next crop. Sorry, next soil, that is your arid soil. Fine. अभी तक समझ में आ रहा है ना? कुछ कुछ याद हुआ Yes, ma'am. है ना? एरिड सॉइल, देखो एरिड मतलब क्या होता है, इसको याद रखो। एरिड आप वोकेबुलरी के सेंस में भी याद रख सकते हो। एरिड मतलब ड्राई, ठीक है। तो अगर आप कोई ऐसे लिख रहे हो या फिर कहीं कुछ वर्बल कम्युनिकेशन में यूज कर रहे हो, दैट वाज अ वेरी एरिड एरिया, दिस इज अ वेरी एरिड पोर्शन ऑफ माय स्किन, अगर ऐसा बोलोगे ना तो उसका मतलब क्या है, ड्राई। तो उससे याद रखो एरिड सॉइल मतलब मस्ट बी अ वेरी ड्राई सॉइल, ठीक है। पानी की बहुत कमी होगी वहां पे, तो इस हिसाब से उसको याद रख लो। तो एरिड सॉइल कहाँ से बेसिकली ओरिजिनेट हुआ है, वेस्टर्न राजस्थान से, कॉमन सेंस। तो अगर आपका क्वेश्चन आता है एरिड सॉइल का ओरिजिनेशन, तो आपको याद रखना है राजस्थान तो होगा ही होगा क्योंकि वहां पे इतना सूखा पड़ा रहता है। वेस्टर्न राजस्थान स्पेसिफिकली याद रखना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फॉर्म, इट इज फॉर्म ड्यू टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एडजेसेंट रॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पे पेरेंट रॉक्स क्या है, एडजेसेंट रॉक्स, फाइन। एंड इट इज लार्जली ब्रोन फ्रॉम द कोस्टल रीजन्स एंड इंडस वैली, जो उड़ के भी आते हैं इंडस वैली से, कोस्टल रीजन से जो सॉइल उड़ के भी आते हैं। मतलब सॉइल कब उड़ेंगे, जब वो रेत के फॉर्म में होंगे। कैन यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन सैंड एंड सॉइल? सैंड इज वेरी लूज, राइट, उसको हम ऐसे गिराएंगे तो वो गिरने लग जाएगा।
सॉइल जो होगा इट इज क्लेई, फाइन, क्योंकि उसमें ह्यूमस रहता है, सो इट विल बी स्टिकी. ओके, सो हियर दिस सॉइल इज वेरी सैंडी इन नेचर. यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट सेंटेंस में that it range from red to brown in color and it is very sandy and gravelly in texture. So arid soil, because of the lack of moisture, it is very sandy in texture. Fine. इसका और एक क्या होता है, it has higher percentage of soluble soils. इसमें salt ज़्यादा होता है. That is why it is saline in nature. Fine. इसमें salt बहुत ज़्यादा होता है. क्यों salt होता है? क्योंकि सारा पानी सूख जाता है. तो जो mineral है ना, so basically salt क्यों होता है? देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि it is largely blown from the coastal regions. So coastal region में ज़्यादा salt होगा, तो वहाँ का जो आपका जो रेत उड़ के आया है इधर, उसमें नमकीन होगा और उससे और पानी निकल जाएगा, तो उसमें salt के content बढ़ जाएंगे. ठीक है? Due to dry climate and accelerated evaporation, जो मैंने अभी बताया है ना. Now it lacks in moisture, ठीक है, humus, ठीक है, इसमें ये दो नहीं होते हैं, and it is also deficient in nitrogen and humus. तो it lacks in moisture, nitrogen and humus. Fine. ना इसमें normal, इसमें क्या क्या पाया जाता है? Phosphate and iron content is there. Fine. So it is not rich in phosphate and iron content, but it has normal phosphate and iron content. Fine. Understood? Yes, ठीक ma'am. है. Priyam got it? Rohit, what happened? Just put it in the chat box. क्या हुआ? You raised your hands. रोहित, जब तुम लोग को कोई डाउट होता है ना, जस्ट रेज योर हैंड, जो इमोजी है हैंड रेज करने वाला, और फिर तुरंत उसे चैट बॉक्स में पुट द डाउट, है ना. ठीक है, ठीक है. ओके, फाइन रोहित, यू हैव नो डाउट्स. ओके, so it has normal iron content and phosphate content. It lacks moisture, humus and nitrogen. Fine. Now going to the next soil. Okay, next soil is your mountain soil. Okay, again mountain soil means mountain में ही पाया जाता होगा, hilly slopes में, valleys में. ठीक है, तो जैसे मैंने आपको कहा था starting में कि alluvial soil constitute 40% of the total soil type. Now here mountain soil constitute 8% of the total land area. Fine. So alluvial soil takes up 40%, mountain soil takes up 8%. ठीक है. Now it is formed due to mechanical weathering caused by snow, rain, temperature. ये तो हमें पता है कि इसी सब से ही weathering होता है, या फिर आपका rain होगा, या फिर आपका temperature होगा, या फिर आपका snow होगा. Right? Got it? Now soil formation, देखो ये बहुत important statement है. Soil formation is slow in mountain areas. Now you must be thinking कि why it will be slow in mountain areas soil formation? क्यों? क्योंकि mountain areas बहुत ऊपर होंगे, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि टेम्परेचर कम होगा, है ना. टेम्परेचर कम होने से वो जो टेम्परेचर मैंने कहा था कि ज्यादा होने से एक्सपैंड करेगा रॉक, फिर कम होने से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वो वाला प्रोसेस स्लो होता है. फाइन, बिकॉज देयर इज लेस टेम्परेचर डिफरेंस. टेम्परेचर हमेशा एक जेन्युइन रहता है, एक जनरल टेम्परेचर रहता है, और जनरली कम रहता है टेम्परेचर माउंटेन एरियाज में. फाइन. इसीलिए द स्लो सॉइल फॉर्मेशन इज स्लो इन नेचर. ओके, नाउ इट इज रिटन दैट इट इज वेरी रिच इन ह्यूमस. यहाँ पे ह्यूमस ज्यादा रहता है. वाई? क्योंकि माउंटेनियस एरियाज में बहुत सारे एनिमल्स पाए जाते हैं, बहुत सारा प्लांट्स रहता है, तो उनके जो डेड मटेरियल्स, डेड लीव्स, वो सॉइल में जब मिंगल करते हैं तो उससे बहुत सारा ह्यूमस प्रोड्यूस होता है. बट इट इज डेफिशिएंट इन पोटैश, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड लाइम. देखो ये सब ना डेफिशिएंसी और रिच, इसका अलग से बाद में क्लास के बाद एक टेबल बनाना और उसको याद रखना. ठीक है, उसका एक निमोनिक्स ऐसे अपने अपने में बनाना कि कैसे तुम लोग को इजीली याद रहे ये चीज, क्योंकि एग्जाम में यही आता है और ये बहुत कंफ्यूजिंग है. किसमें नाइट्रोजन, देखो अभी तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा सब में नाइट्रोजन की कमी है ना. तो ये तो याद रह जाएगा कि हाँ नाइट्रोजन की कमी है, पल्सेस उगाने चाहिए. ठीक है, बाकी सारी चीजें इधर उधर होती हैं. किसी में पोटैश रहता है, किसी में फॉस्फोरस नहीं रहता है, किसी में फॉस्फोरस रहता है पोटैश नहीं रहता है, किसी में दोनों रहता है. तो इसीलिए उसको थोड़ा याद रखना है. नाउ कमिंग टू वेयर दे कैन बी फाउंड इन द हिली रीजन्स ऑफ जम्मू कश्मीर ऑब्वियसली. ठीक है,
उसके बाद असम, ठीक है, ये रहा आपका जम्मू कश्मीर, असम, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम। तो 4 स्टेट्स में ये मेनली पाया जाता है माउंटेन सॉइल, दैट इज J&K, असम, अरुणाचल प्रदेश एंड योर सिक्किम। फाइन, ओके। Now let's go to the next second last soil, that is called peat soil. Peat soil. Now peat soils are known as marshy soils. Can you see this picture? ये पिक्चर दिख रहा है ऐसे मार्शी दलदल टाइप आइलैंड जैसा, है ना, बहुत दलदल टाइप दिख रहा है, बीच बीच में पानी है, बीच बीच में प्लांटेशन है। तो इससे क्या होता है, बहुत ज्यादा डिकम्पोजिशन होता है ऑर्गेनिक मैटर्स का, है ना। यहाँ से आपको एक डिस्टिंक्ट स्मेल भी आएगा मार्शी गैस का, है ना। व्हाट इज मार्शी गैस? प्रियम, आप लोग सबने तो पढ़ा ही होगा, है ना। मार्शी गैस मतलब जिस चीज को आता है चैट बॉक्स में डालो, विच गैस इज नोन एज मार्शी गैस। और बाकी लोग, मार्शी गैस मतलब नहीं पता है तो गूगल मत करो प्लीज, आराम से। नहीं पता है मैम, कोई बड़ी चीज नहीं है अगर नहीं पता है तो, ठीक है। मार्शी गैस मतलब आपका क्या होता है, मार्शी गैस मतलब मीथेन, ठीक है। मीथेन ऐसे ही होता है, अगर कोई सड़ी गली चीज, ठीक है, जिसको हम लोग बंगाली में पोचा पोचा सड़ा ऐसे बोलते हैं ना, वो जब सड़ गल जाता है ना तो क्या होता है कि उससे गैस रिलीज होता है, दैट इज कॉल्ड योर मीथेन, मार्शी गैस। तो यहाँ पे क्या होता है कि ऐसे सड़ी गली जगह में ही पीट सॉइल मिलता है, ठीक है। सो पीट सॉइल इज ऑल्सो नोन एज मार्शी सॉइल। उसके पास लिख लो उसका नेक्स्ट नेम जो होगा, जैसे कि ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज रेग्यूट सॉइल, पीट सॉइल इज ऑल्सो नोन एज मार्शी सॉइल, ठीक है। हाउ इट रिजल्ट्स बिकॉज ऑफ वाटर लॉगिंग, बहुत ज्यादा कॉन्स्टेंटली वाटर एक जगह अगर फंसा रह जाता है, एंड एन एनारोबिक कंडीशन। एनारोबिक कंडीशन मतलब क्या होता है आपका, देखो एक एरोबिक लिखा हुआ है, जहाँ पे आपका ना ऑक्सीजन का सप्लाई आ रहा होगा जा रहा होगा, आ रहा होगा जा रहा होगा, वैसी जगह में क्या होगा कि आपका मार्शी दलदल लाइक कंडीशन बनने लगेगा, ठीक है। Now these is because of these conditions क्या होता है, it leads to the partial decomposition of the organic matter। जो organic matter होंगे, जो plants वगैरह होंगे, या फिर जो भी यहाँ पे हम यहाँ पे उगा हुआ आपको घास वगैरह दिख रहा है, वो डिकम्पोज होने लगता है और उससे एक डिस्टिंक्ट गैस निकलता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम मार्शी सॉइल बोलते हैं, ऐसे सॉइल को। नाउ इट इज फाउंड इन द एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल एंड हाई ह्यूमिडिटी। ये इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने दूसरे कलर में लिखा है, इट इज फाउंड इन द एरियाज ऑफ heavy rainfall and high humidity where there is a good growth of vegetation। क्योंकि vegetation ही फिर सड़ेंगे ना, vegetation will just degrade again। तो इसीलिए जहाँ पे ज्यादा vegetation हो प्लस heavy rainfall and high humidity हो, ऐसी जगह कहाँ पे है, फाउंड इन बिहार, सर्दर्न पार्ट ऑफ उत्तरांचल, ठीक है, कोस्टल एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल, ओडिशा एंड तमिलनाडु। कोस्टल एरियाज, उत्तरांचल एंड बिहार। फाइन। इनके कलर कैसे होंगे, these are heavy and black in color। तो ये बहुत ही डेंस कलर के होंगे एंड यूजुअली ये ब्लैकिश दिखते हैं। और क्यों दिखेंगे, क्योंकि these are rich in humus, ठीक है, because the organic content is 40%, 40% रहता है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे रिच इन में, जैसे हम लिखते जा रहे थे रिच इन, डेफिशिएंट इन, रिच इन में लिखोगे ह्यूमस एंड आयरन, ठीक है, ह्यूमस एंड आयरन। और यहाँ पे और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, इट इज बोथ एसिडिक एंड अल्कलाइन इन नेचर। एसिडिक एंड अल्कलाइन मतलब बोथ एसिडिक एंड बेसिक इन नेचर। कैरेक्टरिस्टिक्स है। फाइन प्रियम, इज इट फाइन, यू कैन अंडरस्टैंड इट? चैट बॉक्स में लिखो एवरीवन, समझ में आया? इसमें समझने का कुछ नहीं है, इसमें एक्चुअली कोरिलेट करने का है। कोई चीज अगर आप फैक्ट ले रहे हो उसको कैसे कोरिलेट कर पा रहे हो, ठीक है। चलो अभी हम लोग नेक्स्ट सॉइल में चलेंगे, दैट इज द लास्ट टाइप ऑफ सॉइल, दैट इज सैलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल। तो ये सॉइल ही बता दे रहा है कि द नेचर ऑफ द सॉइल विल बी सलाइन एंड अल्कलाइन, मींस इट इज सॉल्टी प्लस इट इज बेसिक इन नेचर, ठीक है।
तो इसमें क्या होता है ऐसे सॉइल में क्या होता है कि इतना ज्यादा सॉइल कंटेंट होता है कि जैसे ही वाटर एवापोरेट करता है ग्राउंड में आपको ऐसे स्नोई जैसा दिखने लगेगा. दीज आर नॉट स्नो बट दीज आर योर सॉल्ट कंटेंट्स. ठीक है. सो दिस इज वेरी बैड फॉर द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप. फाइन. कैसे सॉल्ट होगा और ये एसिडिक ऐसे मतलब आपका एल्कलाइन हो जाएगा तो फिर पेड़ तो उगेंगे ही नहीं, है ना. तो फिर इसीलिए इट इज अनफिट फॉर एग्रीकल्चर. व्हाई? बिकॉज द पीएच वैल्यू इज मोर देन 8.5. ठीक है. पीएच वैल्यू इज वेरी मच मोर हियर. ओके. Now the thing is, it has poor soil structure, low infiltration capacity and hard and calciferous layer. ठीक है. क्या होता है इसमें, क्योंकि इसमें थोड़ा कैल्शियम कंटेंट भी ज्यादा होता है और क्या होता है कि इसमें फिल्टर करने की कैपेसिटी इतनी कम जाती है. ठीक है. तो सॉइल स्ट्रक्चर बहुत पुअर हो जाता है. द टेक्सचर ऑफ द सॉइल इज वेरी पुअर. So because of this, it is very hard for a crop to grow in it. Okay. फाइन. तो इसमें हमारा टेक्निकली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए कि इसके लेयर में कैल्शियम भी पाया जाता है. ठीक है. और इट हैज द क्रस्टी सॉल्ट लेयर. पीएच वैल्यू इज मोर देन 8.5. ठीक है. और अगर आपका क्वेश्चन ऐसा आता है विच सॉइल विल बी अप्रोप्रिएट फॉर द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप्स, तो उसमें अगर आपका विच सॉइल इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप्स, अगर उसमें सॉइल अल्कलाइन रहेगा तो आंख बंद करके सॉइल अल्कलाइन डाल देना है ना, क्योंकि उसमें पॉसिबल नहीं है. फाइन. तो आपका सॉइल्स खत्म हो गया ना. ओवरऑल सॉइल समझ में आया क्या है? चैट बॉक्स में बताओ. समझ में आया ना. अब समझ में मुझे कब आएगा कि तुम लोग को समझ में आया? जब मैं एक एग्जाम लूंगी, है ना, तब मुझे आएगा कि हाँ तुम लोग को समझ में आया कि नहीं, क्योंकि ये सारे फैक्ट्स हैं, है ना. तो अभी हम स्लोली चलते हैं लेक्स इन इंडिया में. ठीक है. छोटा सा है लेक्स, थोड़ा सा लेक्स आज जान लेंगे हम लोग, फिर उसके बाद क्लास खत्म करेंगे. तो हमारा लेक्स जो है, लेक इज व्हाट एन एरिया फिल्ड विथ वाटर. उस दिन मैंने बताया था. एंड लेक्स आर जनरली ऑफ टू टाइप्स, दैट इज फ्रेश वाटर लेक एंड सॉल्ट वाटर लेक. ठीक है. जिस लेक में ज्यादा सॉल्ट कंटेंट होगा, सैलिनिटी ज्यादा होगी, तो दैट विल बी सॉल्ट वाटर लेक. विच एवर लेक विल हैव फ्रेश वाटर कंटेंट, फ्रेश वाटर लेक. Now freshwater lake were again of two types, that is natural and man-made. So natural was again of glacial type. Glacial मतलब बर्फ पिघलती है, उसके बाद उससे लेक जो बनता है. टेक्टोनिक मतलब टेक्टोनिक एक्टिविटीज होती है, वो मैं आपको बताऊंगी जब मैं अर्थक्वेक पढ़ाऊंगी. ठीक है. तो बस लिख लो कि टेक्टोनिक टाइप ऑफ लेक होता है. क्रेटर मतलब क्या होता है? मीटियोर समझते हो? ऊपर से मीटियोर स्पेस से आता है. ठीक है. और जब इट हिट्स द ग्राउंड ऑन द अर्थ सरफेस, इट डिग्स अप अ बिग होल. ठीक है. और उसके बाद अगर उसमें पानी भर जाता है, सो दैट विल बी योर क्रेटर लेक एंड दैट विल बी अ फ्रेश वाटर लेक. फाइन. और ऑक्सी वाला जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको बताऊंगी जब मैं आपको और और एक्सप्लेन करके जब मैं बताऊंगी तब बताऊंगी. इसीलिए अभी बस इतना ही याद रखो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा आपके लिए. अभी इसके लिए ये पिक्चर्स दिखाना बहुत जरूरी है. तो याद रखो, नेचुरल लेक्स जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के होते हैं. ग्लेशियल, टेक्टोनिक, क्रेटर एंड ऑक्सी लेक. ठीक है. मैन मेड लेक्स जो होते हैं वो आपके होंगे रिजर्वर डैम्स जो होंगे और एम्बैंकमेंट्स. तो इसको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है. डैम्स में एक्चुअली कितने डैम्स हैं इंडिया में वो याद रखने की जरूरत है, और उसके नाम से याद रखने की जरूरत है. आज हम क्या करेंगे? सॉल्ट वाटर लेक सारा पढ़ेंगे. ठीक है. 7 या 8 सॉल्ट वाटर लेक्स हैं इंडिया में. मैंने पहले वाले दिन बता दिया था आपको चिलिका लेक के बारे में, राइट? हुएवर हैड अटेंडेड चिलिका लेक, है ना. तो जिन्होंने वो क्लास नहीं अटेंड किया था उन लोगों को खुद से चिलिका लेक पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यू हैव टू अटेंड द क्लासेस, अदरवाइज इट विल किल आवर टाइम. क्योंकि हमारा सिलेबस ज्यादा है, टाइम बहुत कम है. तो चिलिका लेक के बारे में क्या क्या पढ़ना है, जिन लोगों ने क्लास नहीं अटेंड किया था वो ये सब पॉइंट लिख लो. चिलिका लेक से रिलेटेड क्या क्या चीज आपको जाके पढ़ना है होमवर्क में? ब्रैकिश वाटर, लगून, ठीक है, सॉल्ट वाटर लेक, ये 3 चीज से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं चिलिका लेक से रिलेटेड वो आपको पढ़ना है जाके.
ठीक है, और चिलिका लेक में किस तरह के डॉल्फिन्स पाई जाती हैं, ये चीज भी आपको जाके पढ़ना है जिन्होंने क्लास नहीं अटेंड किया था। फाइन। तो अभी हम सॉल्ट वाटर लेक में नेक्स्ट में चलते हैं, दैट इज कॉल्ड पुलिकट लेक। ठीक है, पुलिकट लेक इज इन द बॉर्डर ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। ये लिख लो, पुलिकट लेक। यहाँ पे पिक्चर क्लियर इमेज नहीं मिला है। पुलिकट लेक इज एट द बॉर्डर ऑफ आंध्र प्रदेश। ये देखो, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर में ये है पुलिकट लेक। फाइन। नाउ व्हाट इज सो स्पेसिफिक अबाउट इट? इट इज द सेकंड लार्जेस्ट, it is the second largest lake in India. Fine. Saline water lake. Okay, saline water obviously होगा क्योंकि ये salt water है। Saline water में भी it is the second largest saline water lake in India. Fine. ना पुलिकट लेक का और एक स्पेसिफिसिटी क्या है कि पुलिकट लेक में एक पुलिकट लेक बर्ड सेंचुरी भी है, तो वो भी लिख लो। बर्ड सेंचुरी भी वहां पे है, तो आपका और एक चीज ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिनिश कवर अप हो जा रहा है, दैट इज पुलिकट लेक हैज अ पुलिकट लेक बर्ड सेंचुरी। फाइन। तो आपका पुलिकट लेक इज द सेकंड लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक इन इंडिया। इट लाइज इन द बॉर्डर ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। ठीक है, लेकिन देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कि बॉर्डर ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, बट बेसिकली इट लाइज इन तमिलनाडु। सो यू जस्ट कट डाउन द आंध्र प्रदेश। ठीक है, आपका इतना स्पेसिफिक नहीं आएगा, आपका एकदम डायरेक्ट आएगा पुलिकट लेक इज इन, तो फिर वो तमिलनाडु ही आपको डालना है। और लगून का मतलब क्या है, ये चीज जो लोग नहीं आए थे उनको पढ़ना है। ठीक है, लगून का मतलब समझ में आया था उस दिन जो मैंने क्लास में बताया था? प्रलिप्ता, यू वर देयर। लगून का मतलब समझ में आया था? व्हाट वाज लगून? जस्ट पुट इट इन द चैट बॉक्स, जितना भी समझ में आया। ओके, यू डू नॉट रिमेम्बर एग्जैक्टली, फाइन। ओके, लगून का मतलब क्या होता है कि जैसे कैसे मैं आप लोग को बताऊं। बहुत ही गंदी ड्राइंग से बता रही हूँ, पर समझने की कोशिश करना। ठीक है, ये दिख रहा है? ठीक है, दिख रहा है ना? और मेरी आवाज सुनाई दे रही है? दिस इज अ पीस ऑफ वाटर। ठीक है, स्मॉल वाटर बॉडी, और ये लैंड के बीच में है। ओके, ना साइड बाय साइड यहाँ से सी स्टार्ट हो रहा है ना। दिस स्मॉल बॉडी ऑफ वाटर को बिग बॉडी ऑफ वाटर से एक स्ट्रिप ऑफ लैंड डिवाइड कर रहा है। फाइन। जैसे किनारे में, जैसे यहाँ पे ये पुलिकट लेक देख रहे हो ना, ये पुलिकट लेक का जो पिंक पोर्शन दिख रहा है, जैसे कि ये एक वाटर बॉडी है, यही लेक है। फाइन। और यहाँ पे क्या हो गया आपका कि यहाँ पे थिन स्ट्रिप ऑफ लैंड है, यहाँ से डायरेक्टली वो मिल नहीं जा रहा है आपका सी से। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक थिन स्ट्रिप ऑफ लैंड है। सो अ वाटर बॉडी, अ स्मॉल वाटर बॉडी विच इज डिवाइडेड बाय द फ्रॉम द सी बाय अ थिन स्ट्रिप ऑफ लैंड इज नोन एज लगून। ठीक है, उसे हम लगून कहते हैं कि वो एक लैंड स्ट्रिप से डिवाइडेड है, छोटे से लैंड स्ट्रिप से डिवाइडेड है। फाइन। प्रियम गॉट इट? समझ में आया कुछ लगून क्या है? ओके, तो इसे हम लगून कहते हैं। नाउ पुलिकट लेक हमारा खत्म हो गया। नाउ कमिंग टू वेम्बनाड लेक। ठीक है, वेम्बनाड लेक के बारे में क्या है, इसमें खाली छोटे छोटे पॉइंट्स लिखने जाने हैं आपको, क्योंकि आपको याद रखना है। वेम्बनाड लेक इज द लॉन्गेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन इंडिया। ब्रैकिश वाटर का मतलब क्या होता है? ब्रैकिश वाटर का मतलब होता है, प्रलिप्ता कैन यू टेल मी, ब्रैकिश वाटर याद है कि नहीं? थम्स अप करो या फिर थम्स डाउन करो। ठीक है, उस दिन मैंने आपको चिलिका लेक में बताया था कि ब्रैकिश वाटर लेक मतलब होता है, हम बोलते हैं कि चिलिका लेक इज अ ब्रैकिश वाटर लेक। व्हाट इज ब्रैकिश वाटर लेक? हमें पता है कि ये हम जो सब भी पढ़ रहे हैं दैट इज सॉल्ट वाटर लेक।
है ना। सारे के सारे जो अभी एग्जांपल्स है, दो एग्जांपल्स ऑफ सॉल्ट वाटर लेक। ना ब्रैकिश वाटर का होता है कि सॉल्टी बट नॉट एज सॉल्टी एज सी। हाँ, मोर सलाइन देन फ्रेश वाटर से ज्यादा सॉल्टी होता है, पर सी वाटर से कम सॉल्टी होता है। ठीक है, वेरी गुड प्रिया। ठीक है, तो इट इज नॉट एज सॉल्टी एज द सॉल्ट वाटर, तो उसे हम कहते हैं कि ब्रैकिश वाटर थोड़ा सा नमकीन रहता है। ठीक है, और इसका और एक क्या है कि इट इज द लार्जेस्ट लेक इन केरला, केरला का सबसे लार्जेस्ट लेक है। फाइन, नाउ कमिंग टू द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक, जो कि अभी न्यूज में था, जो कि मैंने उस क्लास में भी उस दिन बताया था, लोनार लेक, है ना। मुझे थम्स अप चाहिए बस। अभी लोनार लेक न्यूज में आया था, किन किन लोगों ने सुना है उसके बारे में? प्रलिप्ता ने नहीं सुना था, बट आई डिस्कस दैट डे, तो इट इज फाइन। पूजा, रोहित, प्रियम, अभी एक लेक के बारे में आया था रिसेंट न्यूज में, जो कि रातों रात पिंक हो गया। किसने किसने इस न्यूज के बारे में सुना था? चैट बॉक्स में लिखो। अभी न्यूज में आया था कि पिंक हो गया वो लेक। पूजा ने नहीं सुना, प्रियम ने सुना है, प्रियम और रोहित? नो मैम। रोहित? ठीक है, अगर तुम लोगों ने नहीं सुना तो मैं तुम लोग को बता देती हूँ कि तुम लोग का हालत बहुत ही खराब है। ठीक है, क्यों खराब है? क्योंकि तुम लोग नॉर्मल न्यूज इसका मतलब सुनते ही नहीं हो। अब तुम लोग को मैं बताती हूँ कि टीवी पे पापा मम्मी लोग जो दिन भर न्यूज चला के बैठे रहते हैं, वो बहुत ही फालतू न्यूज होता है, इसीलिए हम लोग नहीं सुनते हैं, क्योंकि आधे टाइम उसमें लोग झगड़ा कर रहे होते हैं, है ना। इसीलिए हम लोग नहीं सुनते हैं जनरली। तो आपके लिए सबसे इफेक्टिव न्यूज चैनल जो होगा वो क्या होगा? राज्यसभा चैनल। ठीक है, ऑनलाइन एक चैनल आर एस टीवी करके आता है, यूट्यूब में जाना, आर एस टीवी टाइप करना, उसमें ना आपकी सुबह एक बार न्यूज आता है 8 बजे का न्यूज या 9 बजे का न्यूज, दोपहर में एक बार 1:30 बजे का न्यूज आता है, रात में एक बार 9 बजे का न्यूज आता है। ठीक है, इन तीनों में से कोई एक टाइम भी बस सुन लेना न्यूज। ठीक है, तीनों टाइम सुनने को नहीं बोल रही हूँ, तीनों में से एक टाइम सुनोगे ना, सारे कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स वो वाला न्यूज सुनते हैं, क्योंकि वहां पे जो न्यूज है, एक्चुअल न्यूज वो दिखाता है। तो आपके क्या स्कीम्स हो गए, कुछ नया डिफेंस प्रोजेक्ट हो गया, ये सब जो एग्जाम में आता है, ये सभी चीजें वहां पे बताती है। ठीक है, तो आज से क्या करना कि या फिर सुबह या फिर सोने से पहले रात में एक बार आर एस टीवी खोलना, ठीक है, यूट्यूब में, और यूट्यूब में लास्ट में ना सोने से पहले एक बार जरूर देख लेना उसे, बहुत हेल्पफुल होता है वो। दैट इज द मोस्ट क्रक्स ऑफ द न्यूज, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिस्ट उसमें वो रहती है। फाइन, ठीक है। क्या चैट बॉक्स में लिख रहे हैं? हाँ हाँ रोहित, कोई बात नहीं, तुम्हारे तो वीकेंड क्लासेस है ना, कोई बात नहीं। ठीक है, तो लोनार लेक में क्या हुआ था आपका रिसेंटली? लोनार लेक इज अ क्रेटर लेक। अभी मैंने बोला था ना कि ये टाइप ऑफ सॉल्ट वाटर लेक इज योर क्रेटर लेक, है ना, नेचुरल जो होता है ना। तो उसमें क्या होता है कि बहुत पहले एक मीटियोर गिरा था वहां पे। अभी जाके तुम लोग एक बार गूगल कर लेना लोनार लेक। तो उसमें क्या हुआ था कि एक बहुत बड़ा होल डगअप हो गया था अर्थ के ऊपर, और उसमें पानी भर गया था। ठीक है, सो दैट वाज लाइक सॉल्ट वाटर। फाइन, तो फिर उस सॉल्ट वाटर लेक में क्या हुआ है, वो महाराष्ट्र में है, उसमें सडनली क्या हुआ, अभी अचानक से वो ग्रीनिश दिखता था, ब्लूइश दिखता था, अचानक से उसमें पिंक हो गया वो। तो अभी तक प्रॉपर रीजंस हमें नहीं पता है, हमें बस ये पता है कि शायद एल्गल एक्टिविटी की वजह से, एल्गी होता है ना, एल्गल एक्टिविटीज की वजह से पिंक हो गया होगा, फिर कोई केमिकल रिएक्शन हुआ होगा, पिंक हो गया होगा। पर ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये रिसेंटली न्यूज में था। सो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि अभी लोनार लेक आ सकता है, कि लोनार लेक इज इन विच स्टेट, है ना। तो इसीलिए ये आपको याद भी रह जाएगा, लोनार लेक इज अ सॉल्ट वाटर लेक दैट लाइज इन महाराष्ट्र। ठीक है, और इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या है, इट इज अ नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट ऑफ इंडिया। नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो ये लिख लो। और एक है कि इसका नेचर कैसा है, इट इज बोथ सैलाइन एंड अल्कलाइन इन नेचर, सो इट इज बेसिक एंड salty in nature, saline in nature. Fine. हाँ, और एक हमारा लेक है सांभर लेक। तो इसको कैसे याद रखोगे? सांभर लेक है,
तो इसको अपोजिट वे में याद रखना पड़ेगा। सांभर तो साउथ इंडियन लोग खाते हैं, पर ये तो लिखा हुआ है राजस्थान, तो ऐसे ही याद रखना कि सांभर जो होगा वो एकदम अपोजिट जगह में होगा, वो अपने जगह में होगा ही नहीं। सांभर साउथ इंडिया में नहीं है, सांभर आपका है राजस्थान में, जहाँ पे कि लोग सांभर खाते ही नहीं है। ठीक है, तो सांभर लेक इज इन राजस्थान। And what is so specific about it? It is a natural lake and it is the largest inland saltwater lake. ठीक है, ये सब बात याद रखना है, इसलिए लिख लो इसे। Now पंचपद्रा लेक, पंचपद्रा लेक is also in राजस्थान। ठीक है, और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? यहाँ पे बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, बाहर से दूसरे दूसरे कंट्रीज से बर्ड्स आते हैं फॉर ब्रीडिंग पर्पसेस। ठीक है, so your पंचपद्रा लेक and your सांभर लेक both are in राजस्थान. Fine. Now सांगो लेक, your Pangong So लेक। ठीक है, पैंगोंग सो लेक, अब ये नाम से ही पता चल रहा है कि ये कहीं नॉर्थ ईस्ट में ही होगा या फिर लद्दाख के साइड होगा, तो इसीलिए पैंगोंग सो लेक जो है इट इज इन लद्दाख। फाइन, एंड इट इज अ सॉल्ट वाटर लेक। इसमें कुछ भी नहीं है, ये हिमालयस में है एट अ हाइट ऑफ 4350 मीटर्स। तो इतने ही इन टोटल आपके सॉल्ट वाटर लेक्स हैं, सो इट इज वेरी इजी टू रिमेम्बर। ठीक है, वेम्बनाड लेक हो गया, पुलिकट लेक हो गया, चिलिका लेक हो गया, सांभर लेक हो गया, पंचपद्रा हो गया, लोनार हो गया, सो लेक हो गया। ठीक है, 7 आर योर सॉल्ट वाटर लेक्स। फाइन, ओके, तो हमारे सॉल्ट वाटर लेक खत्म हो गया, हम नेचुरल वाटर लेक पढ़ेंगे बाद में। फाइन, तो इसके बाद आज का जो कल का क्लास पोस्टपोन कर दिया था मैंने बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज, तो मैंने आज क्लास लिया है। आप लोग का बैच जो है, जो वीकेंड बैच नहीं है, आप लोग वीकडेज बैच हो, आपके क्लासेस फिर से ट्यूसडे से स्टार्ट होंगे, है ना? ट्यूसडे टू फ्राइडे हैं आपके क्लासेस। ठीक है, तो मंडे को क्या होता है, 1-on-1 सेशन होता है। ठीक है, तो अभी तक मैंने क्या क्या पढ़ा है आप लोगों को? लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पढ़ा है, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ा है, सॉइल्स पढ़ा है। ठीक है, थोड़ा सा मैंने बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ा दिया है, थोड़ा सा मैंने लेक का सॉल्ट वाटर लेक पढ़ा दिया है। ये सब पढ़ के आना। ठीक है, क्योंकि मंडे को 1-on-1 सेशन में, ठीक है, 5 PM पे जब आपका होगा, उसमें एक छोटा सा टेस्ट होगा। ठीक है, और ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपको एम्बैरेसमेंट फील होगा, क्या होगा, आपको एग्जाम देने से अच्छा है एक्चुअली, जितना एग्जाम अपियर करोगे उतना अच्छा है। या पूजा, से समथिंग, जस्ट राइट इट डाउन, एक्चुअली आई कैन नॉट हियर। रुको 1 मिनट, हाँ तुम अभी मत बताओ, एक्चुअली अभी मैं फिर से कॉल करूंगी, मैं अपने फोन से आप लोग को फिर से ऑनलाइन रखूंगी, जिससे कि मुझे सुनाई देगा। अभी सुनाई नहीं दे रहा है, ये लैपटॉप है इसलिए। ठीक है, उस टाइम आप बताना क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या है। तो हमारा ना मंडे को 5 PM में एक छोटा सा टेस्ट होगा। आप जितना टेस्ट अटेंड करोगे उतना आसानी है, बहुत इजी क्वेश्चंस रहेंगे, जो मैंने पढ़ाया है उससे रहेंगे। ठीक है, सारे फैक्ट्स हैं, बस हर दिन 10-15 मिनट दे दोगे अभी मंडे तक, तो आपको याद भी हो जाएगा क्या है। ठीक है, तो उसको मिस मत करना प्लीज। अगर आपके कम मार्क्स आते हैं, 0 मार्क्स भी आते हैं, उसको एक बार अटेंड करना, उससे क्या होगा मैं बताती हूँ। सिर्फ फैक्ट्स याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि एंट्रेंस एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग, आप कितना सही करके आ रहे हो। ठीक है, कंफ्यूजन कितना कम रहता है आप में, आपका टाइमिंग स्किल्स कैसा है, टाइम मैनेजमेंट स्किल, ये सभी चीजों के लिए हम एग्जाम देते हैं। फाइन, और जितना प्रैक्टिस करोगे उतना एग्जाम में सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट स्किल, नेगेटिव मार्किंग को कैसे टैकल करना है, नर्वसनेस कैसे हटाना है एग्जामिनेशन से, इन सब के लिए हम एग्जाम देते हैं। और मैं तो आपको यहाँ कंप्यूटर से तो उठ के मारूंगी नहीं, है ना? आपके कम मार्क्स आएंगे तो ऐसा तो नहीं है, मैं तो दिखती भी नहीं हूँ वैसे कि मैं उठ के अभी लगा दूंगी आप लोग को, ऐसा तो नहीं है। अभी तो कॉर्पोरल पनिशमेंट भी है ना, जेल जाएगा इंसान। तो इसीलिए प्लीज वो एग्जाम देना। ठीक है, ताकि तुम लोग का उसमें सिलेक्शन हो जाए। ये सब एग्जाम ना बहुत इजी एग्जाम्स हैं, इतने टफ नहीं है। अगर तुम लोग ना, जैसे जिसका मैथ्स अच्छा है वो अपने मैथ्स पे ज्यादा ध्यान दो, प्लस साइड बाय साइड इसके एग्जाम्स देते रहो, तो क्या होगा कि आपका एक बार में निकल जाएगा। मेरा खुद का जो भाई है, उसने 2 बार एफकैट क्वालिफाई किया। ठीक है, वो एक बार एसएसबी इंटरव्यू के लिए गया, मैं उसे देखती थी, ही वॉज अ गुड स्टूडेंट, पर उसका नॉलेज इन सब में नहीं था। ही वॉज अ साइंस स्टूडेंट, तो उसका नॉलेज इन सब में नहीं था कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री। उसने क्या किया, एक दिन मैं उससे आपकी बात कराऊंगी अगर पॉसिबल होगा। उसने क्या किया कि उसने देखा कि मैं कैसे इसको क्वालिफाई कर सकता हूँ, कट ऑफ कैसे क्लियर कर सकता हूँ। तो कट ऑफ के लिए उसका मैथ्स अच्छा था,
तो उसने मैथ्स पढ़ लिया अच्छे से। साइंस उसका अच्छा था क्योंकि उसका साइंस बैकग्राउंड है, तो फिर उसने देखा कि जनरल साइंस आता है, हाँ मैं ये कर लूंगा। फिर थोड़ा थोड़ा हिस्ट्री पढ़ लिया, थोड़ा ज्योग्राफी पढ़ लिया, एक दो, लेकिन जितना उसने अटेम्प्ट किया उतना सही से अटेम्प्ट करने की कोशिश किया। वहां पे भर के नहीं आना हर क्वेश्चन में आंसर, वहां पे आपको जितना भी पता है उतना करके आना है, ताकि आपका कट ऑफ पार होने के चांसेस ज्यादा रहे। ठीक है, तो इसीलिए प्लीज मंडे की क्लास में जो एग्जाम होगा उसको अटेंड करना। ठीक है, और वो एक छोटा सा ऑनलाइन एग्जाम होगा, तो उसके लिंक आपको शेयर कर दिए जाएंगे। फाइन, तो वो करना। और मैं पहले से, आपके पास आंसर्स हैं, मैंने जो नोट्स दिए हैं और जो भी समझाया है उसी में से ही क्वेश्चन आएंगे। फाइन, और पहले से बता दे रही हूँ, कम मार्क्स आए, कुछ मार्क्स ना आए, बहुत अच्छे मार्क्स आए, इट डज नॉट मैटर, क्योंकि हम एग्जाम दे रहे हैं हमारा टाइम मैनेजमेंट स्किल, हमारे नेगेटिव मार्किंग, ये सबको इम्प्रूव करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना एग्जाम में नॉलेज इंपॉर्टेंट है, उतना ये सब भी इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ओके, फाइन, ठीक है। चैट बॉक्स में किसी ने कुछ लिखा है, एमसीक्यू होगा। हाँ, वो एमसीक्यू ही होगा। ओके, नाउ द थिंग इज, आप लोग यहीं पे रुको, मैं फिर से लॉग इन करती हूँ, ठीक है, थ्रू माई सेल फोन, और हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। बाय। ओके।